अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी दुआओं को उन्होंने हमेशा कबूल किया। मैं अपने दादा अलहाज क़ारी हसनुद्दीन अहमद साहब जो ख़तीब जामा मस्जिद बीदर और अपने वालिदैन का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और मैं उन हर शख्स का शुक्र अदा करना चाहता हूँ मेरे घर में जिनकी वजह से और जिनके सलाह से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं आसिफुद्दीन सर का, चेयरमैन विज़डम स्कूल का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ तक बुलाया और मैं कुछ अपनी इस जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूँ कि आप लोग भी वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँच सकें। मैंने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग मैंने स्टार्ट की है विज़डम स्कूल से। मैंने मेरा एसएसएलसी एजुकेशन 2016 में पास आउट किया। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के जगह ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग को अपना करियर चुन लिया था। वहीं से मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, पीयूसी नहीं किया, सिविल इंजीनियरिंग से बिदर से ही किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग मैंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से ही किया। इसी साल मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। जब मैं फाइनल ईयर में था इंजीनियरिंग में, मुझे पता चला कि आगे मैं अपनी फर्दर मास्टर्स डिग्री इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, IIT से कैसे हासिल करूँ। देयर आर टू methods to intake students in IITs. First is by writing a GATE exam, which is like a CET. As you all know, the CET exams from which you can enter into engineering courses or any other professional courses. Intake of GATE is around 60 to 65%. Intake, other percentages of intakes is by industry sponsored program, in which the company will sponsor you to pursue your further professional studies in these IITs. I opted both the ways. First I gave GATE exam. Unfortunately I didn't clear that, but I came to know about that Larsen & Toubro L&T Construction will have a scheme called as Build India Scholarship, in which there are 3 steps to clear those exams. First, they will shortlist the fresh graduates graduating this year and have a minimum age of 22 years. So I was getting fit into that criteria. I was eligible to write the exam, and they conducted a computer-based test in Hyderabad. I gave test, Alhamdulillah, I cracked that exam, after which the interview was scheduled. It was a 4-panel interview, panelist interview, in which 2 are the professors of IITs and 2 are the authorities of L&T Construction. So it was a very good interview. It was held around 30 to 40 minutes. After the interview, my final year exam was scheduled within 2 days. I gave that exam and I was thinking, what should I do next? If I didn't clear those exams, what should I do? After waiting 2 to 3 days, I got a call from L&T that I got selected in this exam. So for selection criteria, there are 3 things. First, your academic performance and the score which you have gained in your CBT test, computer-based test, and the interview. So based on these 3 parameters, the ranking, the merit list was set. Alhamdulillah, I got 23rd or 24th rank about top 70 students. So the next day the counseling was held. In the counseling, I managed to get IIT Delhi to pursue my masters in construction technology and management. So one more to add that about IITs, sir has told what are IITs and what makes them unique. So the professors there are very highly qualified, highly experienced, and the professors are most senior level professors. वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इंडिया के जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मेरे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फाउंडेशन पे काम किया है। और बुलेट ट्रेन के पीछे जो इंजीनियरिंग है उसके पीछे भी मेरे प्रोफेसर्स का हाथ है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इंडिया के कई जगहों से हैं, ना कि सिर्फ इंडिया के, बाहर के भी बहुत सारे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, फ्रांस से हैं। सो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, हर उस जगह के हैं। जब आप उनसे बातचीत करेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे,
उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकेंगे। इनके अलावा IITs में जो प्लेसमेंट्स होते हैं फाइनल ईयर के बाद, उन प्लेसमेंट्स में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं। उन कंपनीज में बड़े नाम ये हैं कि गूगल कंपनी आती है, माइक्रोसॉफ्ट, मर्सिडीज, फेसबुक, मेटा, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी MNCs आके अच्छा पैकेजेस देती हैं। द मीन पैकेज, द एवरेज पैकेज दैट IITs get there is about 22 to 30 lakhs annually. Last year, the student of IIT Madras from CS background has got highest package among all the IITs, that is around 2.16 crores annually. So these things makes an IIT a unique institutions of India. And one thing to add, that sir has told there is no IIT in Karnataka, but I want to say that in 2016, government of India has established, Indian government has established an IIT in Dharwad. IIT Dharwad is there in Karnataka. So how can you crack these examinations? How IIT, JEE IIT means IIT Advanced? It's not impossible, it's possible. You are thinking that it's too hard to, बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस एग्ज़ाम में टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 2 जो लाते हैं, वो भी फ़िलहाल यही सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, प्रॉपर पढ़ाई से, प्रॉपर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को मेंटेन रखते हुए आप इस एग्ज़ाम्स को, चाहे वो JEE IIT क्यों ना हो, नीट क्यों ना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वो 3 चीज़ें, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। आपको डेडिकेशन दिखाना होगा अपने गोल की तरफ। आपको एक गोल सेट करना होगा। जैसे मैडम ने बताया, गोल आपको किस दिशा में बढ़ना है वो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। या आपको डॉक्टर बनना है, IIT की तैयारी करनी है, इंजीनियर बनना है, या फिर UPSC के लिए तैयारी करनी है, IAS IPS बनना है, या लॉयर्स बनना है। चाहे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आप जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं, क्रैक करने के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी, उसको सोचते हुए आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। तो हार्ड वर्क कैसे स्टार्ट करें? बहुत लोग कहते हैं कि आप एक डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, आप क्या क्या करेंगे सारे दिन में, कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, ये बहुत लोग बोलते हैं, बट कोई स्टूडेंट बनाता नहीं है टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को शायद ही कोई 1 या 2 बनाते हो। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? यही कारण है कि आपको आपकी असलियत पता चल जाएगी उसके बाद, कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आपका वक्त कितना ज़ाया हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप फॉलो करने के पीछे मत देखिए, बस पहले आप टाइम टेबल तो बना के देखिए। टाइम टेबल को बना के देखिए, एक दिन फॉलो करिए, फिर लास्ट में जब आप रात में उस टाइम टेबल को देखेंगे, फिर उसको देखिए कि आपने कितने सब्जेक्ट्स, कितने टॉपिक्स कवर किए, आपने कितना अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। फिर अगले दिन उस टाइम टेबल को, वो जो आपने वक्त ज़ाया किया, उसको एलिमिनेट कीजिए। उस वक्त को अपने पढ़ाई में डालिए, जो वक्त आपने पिछले दिन ज़ाया किया। इस तरह से आप अपने जो बेकार समय है उसको हटाते हुए जाइए और उसमें उस वक्त का यूज़ कीजिए। जब आप इन सब की तैयारी कर रहे होंगे, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। जैसे मैम ने बताया, इन सब में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फ़ोन, आप सोशल मीडिया। मैं जानता हूँ सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, फेसबुक होगा, यूट्यूब चलाते होंगे, स्नैपचैट चलाते होंगे, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये आप बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होता। वो एक नए उसमें फीचर्स आए हैं रील्स के, आप एक बार स्टार्ट करते हैं देखना, उसको ख़त्म नहीं करते। वो इट्स अ नेवर एंडिंग लूप, आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं। बट आपको सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा।
आप यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम को अगर आप चलाते हैं, मैं तो कहूँगा कि ना चलाएं। अगर आप चलाते भी हैं तो उन ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको कुछ सिखा सके। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, ना कि जो अपनी डे टू डे लाइफ उसमें पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को मत फॉलो कीजिए, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करना चाहूँगा, हाउ टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन। मोटिवेट रहने के लिए आप जब टाइम टेबल फॉलो करना, राइट ट्रैक पे आ जाएंगे, जब डे टू डे आप सही टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने आज ये अचीव कर लिया और मैं डे टू डे ये अचीव करता रहूँगा। आपको जब भी आप रात में अपने टाइम टेबल को देखेंगे क्या क्या मैंने अचीव किया, तो आपको एक अंदर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उस सेटिस्फैक्शन को देखते हुए आपने ख्याल आएगा कि मैं कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, कल भी ऐसे ही टाइम टेबल फॉलो करता रहूँगा। इस सेटिस्फैक्शन से आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, अगले दिन भी आप यही फॉलो करते रहेंगे। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी है, आपको अपने साथ लेके चलना है। अगर ये 3 चीज़ें, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें अगर आप मेंटेन कर सकें, कहना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। जब आप ये सब कर रहे होंगे, आपको बीच में नेगेटिविटी, डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, बट स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, इन चीज़ों से दूर कैसे आना? जब भी आप इन चीज़ों के डील करेंगे तो आप अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताइए, अपने माँ बाप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आपको अंदर एक पॉजिटिविटी फील होगी, आप में एक पॉजिटिवनेस आएगी। फिर कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बीच में डाउट्स होंगे कोई टॉपिक्स को लेकर, उस दौरान आप अपने प्रोफेसर्स को या लेक्चरर से नहीं पूछ पाएंगे, उस टाइम काम आता है आपका मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन को उठाइए, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे उस टॉपिक को डालिए, आपको थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिलेंगे, कई प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होंगे उन चीज़ों को, वहाँ से सीखिए। और मैं एक आखिरी शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनके बाजुओं में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।